Okay, good morning, everyone. As yesterday we were discussing about the irrigation. In irrigation, we discussed about the two techniques, right? Traditional as well as the modern. In traditional, I told you the four ways: moat, dhekli, rahat, or chain pump, right? In modern ways, there are the two ways what we are using to irrigation, for irrigation, for giving the water to the plants. There is drip irrigation and sprinkler. Drip irrigation में क्या होता है? Write down. First, write down drip irrigation. Drip irrigation. What is drip irrigation? इसमें क्या होगा? Holes in pipe allows water. मतलब इस तरह से, if the pipe is there, right? यहाँ पे एक और पाइप है जहां से पानी इसके अंदर आ रहा है, ठीक है जी, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ पे होल्स होंगे, राइट? होल्स इन अ पाइप, राइट बच्चे? होल्स इन अ पाइप अलाउज वाटर टू फॉल. होल्स इन पाइप allows water to fall. ठीक है, पानी को गिरने देते हैं. allows water to fall drop by drop. drop by drop मतलब one by one, like a little bit drop, one drop by drop the water will come, ठीक है, at the position of the root. At the position of root, ठीक है, ये डायरेक्टली उसके ऊपर गिरते हैं, राइट? सो दैट इसके बेनिफिट्स क्या हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द ड्रिप इरिगेशन? नेचुरली इट सेव्स वाटर, पानी बच रहा है, ठीक है, वाटर इज नॉट वेस्टेड. एंड सेकेंड इज इट इज द बोन. ये एक ऐसी बैकबोन की तरह है इन दोज एरियाज वेयर द वाटर इज वेरी लेस अवेलेबल, जहां पे पानी की स्कार्सिटी है, बट वी हैव टू ग्रो क्रॉप्स एंड ऑल दिस, तो वहां पे ये हमारी बैकबोन की तरह काम करते हैं, दिस सिस्टम. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? एडवांटेजेस: water is not wasted. Water is not wasted by using this method at all. Water will not waste, right? And the second thing is it is a bone in those regions. It is a bone in those regions where water is less available. Where water is less available. ठीक है, ये कहाँ पे है, क्या इसके बेनिफिट है? By using drip irrigation and the sprinkler, when we are using, the water is not wasted, and it is a bone. Bone means, as we had discussed na, bone and bane, advantages and disadvantages. So it acts as a bone, okay? It behaves as a backbone in those regions where the water is very less available. Availability of water is very less, right? Then second is sprinkler. Second is sprinkler. Second modern method is sprinkler. अब इस स्प्रिंकलर में क्या होता है? ऐसे परपेंडिकुलर एक नोजल्स मतलब पाइप्स होती हैं, इस पे नोजल्स होते हैं, एंड वाटर विल कम यूनिफॉर्मली, हर जगह जाएगा इक्वली, राइट, बाय दिस मेथड. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? वाटर इज स्प्रेड ऑन द प्लांट्स यूजिंग स्प्रिंकलर. ठीक है, वाटर इज स्प्रेड ओवर प्लांट्स यूजिंग स्प्रिंकलर. तो व्हाट इज स्प्रिंकलर? इट इज अ परपेंडिकुलर पाइप की तरह ये होता है. इट हैज अ नोजल, ठीक है, रोटेटिंग नोजल है ऑन द टॉप ऑफ द स्प्रिंकलर. ये रोटेटिंग नोजल है. इट विल मूव एंड स्प्रेड द वाटर, spray the water uniformly to all the parts of the plant. Is it clear? है ना? I gave you the example
like in the cricket field, all of you know कि cricket field में they use the sprinklers, ठीक है, तो wet करने के लिए field को, right? After this you can just write कि nozzle is at the head, rotating nozzle is at the top of the sprinkler through which the water is sprayed or water is given to the plants. And again the advantage is same, that water is given to all the plants properly, uniformly plants को पानी मिल जाता है. Now first method we had discussed plowing. Second we had discussed selection and sowing of seed. Third we had discussed, क्या किया था हमने third? Replenishment of nutrients and fertilizers. खुद बोल के देखो बेटे. Fourth हमने क्या किया? Irrigation. Now fifth, that is crop protection. That is crop protection. Now पानी दे दिया, nutrients मिल गए. Now we have to protect our crops. ठीक है? अब protection कहाँ से किससे करनी है? All of you had seen in your potted plant also some of the pots, some of the plants grown automatically. अपने आप ही उनके साथ एक अलग से पौधे लग जाते हैं. ठीक है, आप अपने घर के बाहर देखो तो वहां पे भी आप देखोगे कि अपने आप ही पौधे लगे होते हैं without sowing any seeds, है ना? तो these are called the weeds, unwanted plants. So crop protection, that is protection from weeds. The unwanted, you can say protection from weeds. So what is weed? Weed क्या है? What is weed? Unwanted plants which grow along with the main crop. Unwanted plants grow along with the main plant. Ab, if these weeds grown automatically, why we want to remove it? हमें इसको क्यों हटाना है? क्यों हटाना है? एक लाइन और लिख लो पहले. The removal of, या यहाँ लिख लो weeding. Weeding. The removal of weed is called weeding. The removal of weeds is called weed. ठीक है, अब मुझे बताओ ये अनवांटेड प्लांट उग गए, why we want? Yes Prabhnur, unmute yourself बेटे, unmute yourself. Ma'am, because they consume the water, nutrients and fertilizers of the crops. Yes, yes, From the crop. unmute yourself बेटे. Ma'am, due to weeds, the plants do not get sufficient nutrients. Definitely. अब देखो, अगर मैं आपके रूम, ये हम क्लासरूम की बात करें, if we are talking about our classroom, है ना, हमारी क्लास की कैपेसिटी है इतने इतने बच्चे ऐसे बैठने. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब जब मैं और उसके साथ आके 2 बच्चे और बैठ जाए तो स्पेस कम हो जाएगा. ठीक है, देन यू आर नॉट एबल टू गेट द प्रॉपर, मतलब अगर हम प्लांट्स की बात करें, एक ही जगह पे हमने स्पेसिंग करी थी, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, अब यहाँ पे अनवांटेड प्लांट्स उग गए, राइट? तो व्हाट दे विल डू? दे विल यूज ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, दे विल फाइट फॉर द फूड, they will fight for the sunlight, they will fight for the space. Getting my point? जो nutrient, space, sunlight इनको मिलना था, अब weeds are taking. So we have to remove the weeds and the process is called weeding. Right बच्चे? Right बेटे? Then लिखिए. अब क्रॉप प्रोटेक्शन जो है, या पहले एक क्वेश्चन इसके साथ ये लिख लो, व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिमूव द वीड्स. क्वेश्चन लिख लो, व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिमूव वीड्स. हमें वीड्स को क्या क्यों रिमूव करने की जरूरत है? अभी हमने बात करी. क्वेश्चन किसी भी तरह से, इफ इन दिस क्वेश्चन विल कम इन एग्जाम,
सो हमें उनके पॉइंट्स पता होने चाहिए. Why is it necessary? पहला क्या था? They consume the nutrients. As Prabjot said, Prabnoor said, they consume या use, they consume the nutrients. They consume nutrients. ठीक है? They consume nutrients. They consume nutrients, water. They consume nutrients, water, sunlight, and space. ठीक है जी? They consume nutrients, water, sunlight, and space. ठीक है? Second point. Sometimes these weeds will produce toxic substances. They produce toxic substances which are harmful, yeah, which are poisonous in nature, which are poisonous. ठीक है? That is harmful for the plants as well as the human being. ठीक है? एक और कर सकते हैं हम कि जो क्रॉप पेस्ट साथ में उग जाते हैं, they also produces some kind of the diseases. क्रॉप पेस्ट मतलब जो साथ में अपने आप चीजें आएंगी, they also spread some kind of the diseases, or otherwise you can write these two या लिख लो क्रॉप पेस्ट kind of plant diseases. ठीक है बच्चे? क्लियर है? Then write down the next thing, that is the method used to remove weeds. Methods used to remove weeds. Weeds. कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं टू रिमूव वीड्स? वीड्स को रिमूव करने के लिए व्हाट आर द डिफरेंट वेज? मैकेनिकल वेज एज वेल एज द केमिकल. मैकेनिकल मेथड एंड केमिकल मेथड. Mechanical method is with hand plow. मतलब अगर आप देखो तो आपने स्कूल में भी देखा होगा, and you had seen even at home also, कि हम खुरपी यूज करते हैं. खुरपी पता है? ट्रॉल खुरपी, जिससे हम मिट्टी को ऊपर नीचे भी करते हैं एंड अनवांटेड प्लांट्स उसके साथ जो है वो रिमूव हो जाते हैं. दैट मीन्स मैकेनिकल मेथड जो है दैट इज विद हैंड. Mechanical method is with hand or plowing. With hand, हम हाथ से पौधे उठा देते हैं, और plowing ये हम इन दो चीजों से करते हैं. और इसके लिए हम apparatus और equipment कौन सा यूज करते हैं? सीड ड्रिल, हो, खुरपी. इक्विपमेंट्स कौन से हैं? सीड ड्रिल, आपने हो देखा था ना, पिक दिखाई थी, एंड खुरपी. खुरपी को ट्रॉल बोलते हैं. विजिबल है? वेट, मैं कर रही हूँ. ठीक है? सीड ड्रिल, हो एंड खुरपी, जिसको हम ट्रॉल बोलते हैं,
we will use this to remove the weeds. ठीक है? And then next we are having chemical method. That means by using chemicals, that is called weedicides. That is called weedicides. Some chemicals we will use, जिनको हम बोलते हैं weedicides. To remove the weeds, we will use the weedicides. ठीक है? आपकी बुक में एक दो नाम गिवन है, that's why I'm writing. ठीक है? 2,4-D. 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 What is the full form? पेपर में full form नहीं आएगी, मैं वैसे ही बता रही हूँ. 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसका नाम होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. नो नीड टू लर्न, आई एम जस्ट टेलिंग कि ये 2,4-D सिर्फ ऐसे ही नहीं है, इसका बहुत बड़ा नेम है. 2,4 ना उसकी अब कैसे बताओ, 2,4 जो उसकी पोजीशन बताते हैं कि कहाँ पे क्या अटैच है, वो आप लेटर ऑन 10th में करोगे. ठीक है? 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. इसके साथ दूसरा नाम लिखो, एग्जांपल लिखो, MCPA. MCPA weedicide that we are using, MCPA. ब्यूटाक्लोर, मेटाक्लोर. ब्यूटाक्लोर, मेटाक्लोर, डेलापेन. ब्यूटाक्लोर, मेटाक्लोर, डेलापेन. ये कुछ weedicides के नाम हैं, जो आपको लर्न हो वो आप लर्न कर लेना. These are the methods to remove the weeds and the chemicals that we are using, that is called weedicides. इसमें हमारे पास है 2,4-D, ठीक है? Then MCPA, ब्यूटाक्लोर, मेटाक्लोर, डेलापेन. ओके ओके बेटे. Next we are having the next topic, that is crop protection भी हो गई. Now we have to cut the crops, that is called crop harvesting. That is called crop harvesting. अब अगला लिखो harvesting. 6th heading है हमारी harvesting. हार्वेस्टिंग. अब हमने काटनी है अपनी क्रॉप्स, ठीक है? फॉर हार्वेस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग. व्हाट इज हार्वेस्टिंग? द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग. द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग क्रॉप्स आफ्टर मैच्योरेशन. Crops after maturation, that is called harvesting. ठीक है? और जो क्रॉप होती है उसको 3 to 4 months लगते हैं, मतलब 3 to 4 months लगते हैं क्रॉप को मैच्योर होने के लिए. 3 to 4 months, मतलब you can write in the form of sentence कि it takes 3 to 4 months. It takes 3 to 4 months. ठीक है? 3 से 4 महीनों में हमारी जो फसल है that will be ready to cut. अब how we will do the harvesting? It is again done by the different ways. Number 1, sickle. मतलब आप simply लिख लो. It is done by method बहुत होते हैं, but in your book not given, so we will just write it is done by sickle or by machine called harvester. By sickle
or machine called harvester. मतलब या तो हम सिक्कल यूज करते हैं, सिक्कल ऐसे होता है जो ऐसी शेप में होता है ना, सिक्कल ऐसे काटते हैं पौधों को, दे विल यूज द सिक्कल एज वेल एज द हार्वेस्टर। ठीक है, जब हमारी क्रॉप्स मैच्योर हो जाती है, जब बिल्कुल क्रॉप्स बन गई, ठीक है, ग्रेन्स आर सेपरेटेड, हम उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज यूज करते हैं। इन योर बुक वन वर्ड इज गिवन कंबाइन, आपकी बुक में एक वर्ड गिवन है कंबाइन। ये कंबाइन क्या है? इट इज अ न्यू ट्रैक्टर, मतलब एक मशीन है जिसके अंदर कटिंग भी होती है और थ्रेशिंग भी होती है। अदरवाइज अगर हमने व्हीट लेना है, गेहूं की फसल ली, हम उसको क्या करते हैं? देन बीटन ऑन अ हार्ड, हमने करा हुआ है ना 6 में, बीटन ऑन अ हार्ड ऑब्जेक्ट सो दैट जो ग्रेन्स है वो सेपरेट हो जाए। इन द सेम वे अब एक न्यू मशीन, मतलब नाउ दीज डेज द फार्मर्स आर यूजिंग द कंबाइन। कंबाइन ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करेगी। इन कंबाइन हार्वेस्टिंग भी होती है, मींस कटिंग भी होती है, ग्रेन सेपरेट भी होते हैं। लिख लो यहाँ पे कि आफ्टर हार्वेस्टिंग the grains are separated from the chaff by the process called threshing. लिख लो साथ में बच्चे, after harvesting the grains are separated, after harvesting grains are separated from the chaff, ठीक है, CHAFF, from the chaff by a process called threshing. ठीक है, now these days threshing is done by a combine. What is combine? Combine is a machine. ठीक है, combine जो है that is a machine है which will perform the dual function. Dual function will perform by this machine. ठीक है, अब कौन कौन से dual function perform करती है? One is thresher and second is harvester. मतलब हार्वेस्टर भी करती है, हार्वेस्ट भी कर देगी, कटिंग भी कर देगी, ठीक है, और उसको अलग भी कर देगी। ठीक है, दैट इज डन बाय द मशीन दैट इज कॉल्ड कंबाइन। दैट इज कॉल्ड कंबाइन। ठीक है, देन उसके बाद हम मतलब सीड सेपरेट हो गए। आपने देखा है इन 6th क्लास ऑल्सो यू रेड अबाउट विनोइंग, फिर हम उसको एक ऊंचाई पे लेके जाते हैं जिससे अलग होते हैं, दैट इज ऑल्सो द प्रोसेस टू सेपरेट द सीड्स। ठीक है, विनोइंग भी करते हैं। लिख लो विनोइंग की डेफिनेशन भी लिख लो, ग्रेन्स आर सेपरेटेड बाय विंड्स, मतलब टर्म्स लिख लो कि ये आपने पढ़नी है। Winnowing, grains are separated by wind. ये आपको पता ही है कि ग्रेन्स कैसे सेपरेट होते हैं विंड से। ठीक है, इन योर बुक वन पैराग्राफ इज गिवन ऑन दिस साइड, ठीक है, दैट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल। Harvest festival. What is the meaning of the harvest festival? Naturally, all of you are aware with the Baisakhi. कब होती है? अप्रैल में, है ना। अब हमने जब क्रॉप्स करी थी, एक बार जस्ट रिवाइज करके देखो, when we discussed there are 2 types of the crop, rabi crop and kharif crop, है ना। Rabi ritu wears, rabi crops grown in winter and the crop is wheat. That means wheat कब उगाई गई? विंटर्स में, बनने में 3-4 महीने लगे, ठीक है, तो ये कब हार्वेस्ट हुई? अप्रैल में। तो अप्रैल में हम कौन सा फेस्टिवल बनाते हैं? बैसाखी, है ना। दैट मीन्स जब हमारी क्रॉप्स ग्रो हो जाती हैं उस टाइम पे वी एंजॉय, वी sang the, मतलब द फार्मर्स दे यूज्ड टू सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, दे डांस, ठीक है, विद द फुल जॉय, दे शो देयर happiness in the form of the festival. ठीक है, in India we celebrated, in India or in Punjab we can say the Baisakhi we are celebrating at a very peak level, like high level पे,
ठीक है, वी शोड आर हैप्पीनेस बाय सीइंग द गोल्डन फाइबर्स, क्योंकि पूरे खेत में गेहूं वीट लहरा रहा होता है, तो वीट का जो कलर होता है इट लुक लाइक द गोल्डन फाइबर्स। कौन सी क्रॉप गोल्डन फाइबर की तरह लगती है? वीट। ये भी नोट करना है आपने, अगर इन एनी केस एमसीक्यू कोई भी क्वेश्चन किसी तरह से आ जाए हमारे यहाँ होना चाहिए, राइट? So which is called the golden fibers, and why it is called? Because it is yellowish in nature and the field is thoroughly मतलब distributed with this, yeah, covered with this wheat crop and it looks like a golden fiber। और उस टाइम पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बैसाखी, हम अपनी हैप्पीनेस को शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द सॉन्ग्स, डांस एंड ऑल। एंड इन अदर ऑल्सो इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, स्पेशल फेस्टिवल इसी चीज के लिए करते हैं, पोंगल है, बिहू है, होली, दिवाली, नबायना, नंबर ऑफ द फेस्टिवल्स वी आर यूजिंग। सो यू विल जस्ट नोट डाउन, और बुक में आपका पैरा गिवन है तो यू विल नोट इट फ्रॉम द बुक। हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये आपने बुक से प्रॉपर रीड करना है पैराग्राफ को, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर्स। किसी को इसमें डाउट है? हार्वेस्ट फेस्टिवल में, हार्वेस्ट फेस्टिवल में किसी को डाउट? नो? आगे करें, आगे कर लें, चलो। देन हमारे पास अब हार्वेस्टिंग भी हो गई, सारा कुछ हो गया, अब हमारा लास्ट स्टेप है दैट इज स्टोरेज। वेरी गुड प्रबलीन, द लास्ट स्टेप इज स्टोरेज। That is the very important point, very important। Storage is very important task, ठीक है? आपने देखो, हम लोग घर में हर मंथ राशन लेके आते हैं, लाते हैं, हम लोग परचेज करते हैं, हम लोग वेजिटेबल्स लाते हैं, हम लोग पल्सेस लाते हैं, सॉल्ट, स्पाइसेस, सारा कुछ परचेज करते हैं। अगर हमने उनको रैंडम ऐसे ही रख दिया, what will happen? कोई भी इंसेक्ट अटैक करके खराब कर सकता है, उसको कोई इंसेक्ट लग सकता है। अब जब बारिशों के दिन होते हैं तो ऑल ऑफ यू समटाइम ऑब्जर्व कि किसी किसी दाल में या पल्सेस में या चने में कीड़ा लग जाता है ना? तो हाउ? तो दैट मीन्स इफ वी आर बाइंग और वी आर हैविंग समथिंग, तो वी हैव टू स्टोर प्रॉपर्ली। कुछ लोगों के घरों में वीट के बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, कई लोग आटा पिसवाते हैं तो बड़े ड्रम, उनको वो संभालते हैं। कई लोग चावलों के अंदर मेडिसिन डालते हैं, जो चावल बहुत लेते हैं, ठीक है? सो स्टोरेज इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। आपने सारा कुछ कर लिया, अगर आप उसको स्टोर नहीं करोगे प्रॉपरली तो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई इंसेक्ट जो है वो अटैक कर देगा, ठीक है? सो राइट डाउन स्टोरेज, इम्पोर्टेंट टास्क, इट शुड बी फ्री, इट इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। It should be free, मतलब crops should be free. It का means crops. It should be free from moisture. किन किन से हमें बचाना है? Moisture, ताकि पानी ना आए उसके अंदर, ठीक है? Insects, rats and microorganisms या microbes, इनसे हमें उनको प्रोटेक्ट करना है। और जब हमें इनको प्रोटेक्ट करना होता है उनसे, तो हम क्या करते हैं? ग्रेन्स को शुड बी ड्राई इन सन, हमें ग्रेन्स को सन के अंदर रख के ड्राई करना पड़ता है, सो दैट उसके अंदर से मॉइस्चर खत्म हो जाए। आपने देखा होगा कि जब किसी दाल को भी होता है तो हम उसको पूरी धूप लगवाते हैं, ठीक है ना? अगर उसको पूरी धूप लग जाए तो उसके अंदर इंसेक्ट हट जाते हैं। जो आप लोग फ्रोजन चीजें यूज करते हो वो एक डिफरेंट है, बट जब हम जैसे ये जो आटा पिसवाना होता है या वो है कॉर्न्स हैं, ठीक है, तो उनको पहले लार्ज स्केल पे ड्राई करते हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर हम आगे जाएगा, यूरो के आगे की साइड पे देखें तो वहां पे हमारे पास बहुत बड़े बड़े स्टोरेज भी हैं, कोल्ड स्टोरेज इज ऑल्सो देयर। वहां पे ये चीजें भी हैं, वो उसको प्रॉपरली ना सुखाते हैं छलियों को,
ठीक है, उसको प्रॉपर ड्राई करते हैं, देन दे हैव टू स्टोर, उनको हम इस तरह से ड्राई करते हैं इन सन। ठीक है बच्चे, आगे लिखो।